So students, today's topic is the sense of the collective belonging. This is the last topic of your chapter, how the collective belonging, inspirations and the feeling emerge between the Indians. So there is an image, look this carefully. This is the Bal Gangadhar Tilak at the early 20th century print noise how Tilak is surrounded by the symbol of united and the state institution and different faith, temple, church, masjid frame the central figure. यहाँ देखिए, यहाँ पर इनका पिक्चर आया है किस तरह से इन्होंने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को इंस्पायर किया. Now, according to your book, I'm explaining the nationalist spread when people began to believe that they are part of the same nation. ये feeling कब आई? जब उन्हें लगा कि वो एक ही country का part है. When they discover some unity and the bind them together. But how did the national become a reality in the minds of people? लेकिन किस तरह से लोगों की mind में आया? How did people belonging to the different communities, regions, languages, group development, sense of collective belonging? So these questions we will discuss in this chapter. So next is the sense of collective belongings came partly through the experience of the united struggle. देखिए जो भी struggles हुए हमने बहुत सारे movement करे, non corporation, civil disobedience, सत्याग्रही, but there was also variety of culture process through which the nationalism captured people imagination. History and the fictions, folklores and songs, popular print and symbols all play a part of the making of the nationalism. I have explained this earlier also. इन सभी का बहुत important part रहा nationalism की feeling को spread करने में. The identity of the nations, as you know that chapter 1 यहाँ पे भी हमने क्या नहीं है, it most often symbolize a figure और images. यहाँ पे भी क्या किया, personify किया गया, यानी एक किसी feeling को एक image दे दी गई. The help create an image with people can identify the nation. उस यानी कि उस image से उस nation को identify किया जा सके. It was 20th century with the growth of nationalism, then the identity of the nations came to be visualized associate with the image of the Bharat Mata. यहाँ पे भारत माता का image दिया गया. The image was first created by the बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पर्सोनिफाई किया इमेज दी भारत माता. इन द 1870 रोड द वंदे मातरम. यहाँ पर 1817 में क्या किया गया, देखिए वंदे मातरम जो है लिखा गया है. द यूज ऑफ द मदरलैंड के लिए गाना था ये. लेटर इट वाज इंक्लूडेड द नोवेल अभिंद्रनाथ आनंद मठ. ये कहाँ से ले गया, आनंद मठ जो नोवेल था उनका. वाइडली सॉन्ग्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. और बंगाल में से बहुत गाया गया जब स्वदेशी मूवमेंट वहाँ पर चल रहा था. So moved by the Swadeshi movement, Abhinnath Tagore printed a famous image, the Bharat Mata, and the printing Bharat Mata is the poetry at the aesthetic figure. She is calm, composed, divine, spiritual. In the subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms at the circulate popular prints and was printed by the different artists, and the devotions to the mother figures came to be seen as a evidence of the one's nation. यानी एक तरह का ये क्या बन गया, evidence बन गया nation का. Idea of nationalism थ्रू द मूवमेंट टू द रिवाइव इंडियन फोकलोर्स होते हैं जो लोग गीत होते हैं, गाने होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं. इन लेट 90th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन द रिकॉर्डिंग द फोक टेल्स sung by the bears and they taught villages together folk song and the legends. These tales they believe gave true pictures of the traditional cultures and had been corrupted the damaged by the outside force. धीरे धीरे क्या हो रहे थे करप्ट, यानी कि ख़त्म भी हो रहे थे और कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे थे. जो इट वॉज असेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशंस. बहुत ज़रूरी है कि इन फोक ट्रेडिशंस को क्या किया जाए. मोस्टली ट्राइबल ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पे. अदर डिस्कवर वंस नेशंस आइडेंटिफाई द रीस्टोर द सेंस ऑफ प्राइड ऑफ वन नेशन. और इससे क्या आएगा, एक आइडेंटिटी आएगी कि हम इतनी एक ही कंट्री का पार्ट है जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है. इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन टू कलेक्टिंग द
baldas, nurseries, and rhymes and maze and relate to the moments for folk. ये देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की पिक्चर आ रही है, यहाँ पे भारत माता इमेज दे दिया गया है। देखिए ये भारत माता की इमेज है। यहाँ पे देखिए 1905 में अबिंद्रनाथ जो टैगोर है उन्होंने इसे किया है। ये कुछ क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। रिवाइवल इन मद्रास नेताजी नीतीश शास्त्री publish a massive 4 volumes collections of the Tamil folk tales। तमिल का जो हम बात करें जो लिटरेचर था, it was very famous and the folklores of the southern India। He believed that the folklores were national literature। It was the most trustworthy manifestations of people real thought and character। कि उनका ऐसा मानना था कि जो ये लिटरेचर है इन्हें बहुत प्रिजर्व करने की ज़रूरत है जो रियलिटी को शो करता है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर सच आइकन्स एंड सिंबल। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हुआ, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे इन आइकन, सिम्बल्स एंड यूनिफाइड पीपल्स टू इंस्पायरिंग टू देम द टेलिंग द फॉर नेशनलिज्म को बताने लगे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया यहाँ पर, इसको भी मैंने बताया आपको। ट्राई कलर फ्लैग अंडरलाइन करेंगे इसको, रेड ग्रीन येलो डिज़ाइंस। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटेटिंग 8 प्रोविनेंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। 8 प्रोविनेंस थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड क्रिश्चियंस मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, एक मून था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। बाय 1920 देखो 2 बार हुआ है यहाँ पे। 1921 में फिर से डिज़ाइन किया गया स्वराज्य फ्लैग। जो ट्राई कलर था इसमें भी रेड ग्रीन वाइट, और स्पिनिंग व्हील था बीच में, चरखा जिसको हम कहते हैं। एंड रिप्रेजेंटिंग द गांधी जी आइडिया ऑफ द सेल्फ हेल्प, कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग लॉफ्ट ड्यूरिंग द मार्च एंड बिकम द सिंबल ऑफ द डिफेंस, इसको इन्होंने सिंबल बनाया। अनदर मीन of creating feeling of nationalism was through the reinterpretations of history। By the end of the 19th century, India began feeling to the instill the sense of pride in the nation। अब देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई गई, इंडिया का पास्ट बताया गया लोगों को। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट बिकम डिफरेंटली। द ब्रिटिश सॉ इंडियन एज द बैकवर्ड एंड द प्रीमेटिव्स। ब्रिटिश ने बताया जैसे कि इंडिया बहुत बैकवर्ड है, प्रीमेटिव्स है, इनकेपेबल टू द ग्रोइंग देमसेल्फ। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर द इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। और इसी सेंस में उन्होंने अपने अचीवमेंट्स को देखना शुरू किया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट एंशिएंट टाइम्स विद द आर्ट एंड लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, religious culture, law, philosophy, craft, trade has flourished। This glorious time in their views was followed by the history of declines when India was colonized। अब सब लोगों को ये बताया गया कि हमारा जो पास्ट इतना ग्लोरियस था and it was declined when Britishers came to India। So these are the responsible for the this thing। Britishers are responsible। These nationalist histories I urge the readers to like the pride of nation to great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions under the British rule। अब जब लोगों को अपने प्राइड के बारे में, इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में पता चला कि हम पास में कैसे थे, तो उन्होंने जो कॉलोनियल्स गवर्नमेंट है, जो हमारी जो मिसरेबल जो दयनीय स्थिति हो गई थी अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। These efforts to unify the people were not without problems। When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were the drawn from the Hindu iconography and the people communities felt left out। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली 3-4 टॉपिक हैं, इस फ्लैग को याद रखना है। कंक्लूज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है, क्या कंक्लूज़न रहा। ये देखिए किस तरह से मास मूवमेंट हुए हमारे जो वुमेंस वाज द प्रोसेशन ऑन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए कितनी वुमेंस से यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर। फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। जस्ट अ मिनट। The failure of the Cripps mission, the effects of the World War II created the widespread discontentments in the India।
This led Gandhiji to launch the movements calling from the complete withdrawal for the British from India. अब जब ये सारे क्रिप्स मिशन भी फेल रहा तो गांधी जी ने कंप्लीट विड्रॉवल की बात की कि यहाँ से ब्रिटिशर्स को चले जाना चाहिए. एंड द कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी इज मीटिंग टू द वाटा इन द 40 जुलाई 1942 पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. उन्होंने यहाँ पे क्विट इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है. यहाँ पे देखिए क्विट इंडिया, demanding the immediate transfer to power Indian to quit India on 8th August 1942 in Bombay. All Indian Congress community endorsed the resolutions with the calling for the non-violence mass struggles on the widest possible scales throughout the country. यहाँ पे क्विट इंडिया जो भारत छोड़ो आंदोलन नारा दिया था उन्होंने, डू और डाई का. यहाँ देखिए इसमें स्पीचेस में दे रखा है क्या दिया है, डू और डाई का यहाँ पे स्पीच दिया. क्विट इंडिया ने भारत छोड़ो. ऑलमोस्ट ये पूरे कंट्री में स्प्रेड हुआ. नेशनल सॉन्ग्स एंड द स्लोगन्स दिए गए कई जगहों पर. थाउजेंड्स पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया. यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण, अरुणा सफ अली, राम मनोहर लोहिया, मैनी वुमेन सच एज उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. सो दिस इज़ अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट. सो ये चैप्टर इज़ ओवर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.